السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ کو پتہ ہے موبائل ریپیرنگ کے ساتھ ساتھ میں موبائل ریپیرنگ کرنے والے دکاندار حضرات کے لیے معلوماتی ویڈیو بھی بناتا رہتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی پریشانی کے عالم میں بھی صبر و تحمل اور سوجھ بوجھ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو کچھ دکانداری کے معاملات میں احتیاط کرنے کا بھی پتہ چلے گا۔ یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سن 2006 کی ہے۔ میں کسی دکان پر ایز اے ملازم کام کرتا تھا۔ جس دکان پر میں کام کرتا تھا ادھر ایک لڑکا اور تھا اور ایک ہمارے جو بوس ہمارے سر تھے۔ ٹوٹل اس دکان میں ہم 3 لوگ ہوتے تھے۔ یہ ایک سردیوں کی رات تھی۔ ہم تینوں نے دکان بند کی اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میری عادت تھی صبح میں تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ جاتا تھا۔ دکان صبح 8 بجے کھل جاتی تھی اور میں تقریباً 8:30 بجے دکان پر جاتا تھا۔ صبح جیسے ہی میں دکان پر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو PTCL پر کال آ گئی دکان سے۔ وہ لڑکا جو میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ حافظ صاحب دکان پر چوری ہو گئی ہے۔ تو اس کی بات سن کے میں کافی حیران ہو گیا کہ چوری کیسے ہو گئی۔ بہرحال میں دکان پہ گیا، دیکھا کہ کافی لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور پولیس بھی آ چکی ہے اور موقع واردات دیکھ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ تقریباً 2.5 لاکھ کا سامان چور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب چور ہماری دکان میں آئے کیسے تھے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بعض دکانداروں کی چھت اس طرح ہوتی ہے ٹائلوں والی۔ انہوں نے کیا اوپر سے پھلانگے اور تقریباً 2 ٹائلز ہٹا کر نیچے کوئی اترا ہوگا، اس نے سامان نیچے سے ہی اوپر دیا اور اوپر سے ہی چھتوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے غائب ہو گئے۔ اب جو ہمارے سر تھے نا وہ بہت سمجھدار اور عقل مند انسان تھے۔ وہ اب بھی حیات ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے۔ ان کی وجہ سے ہمیں بڑی تجربے کی باتیں ملی ہیں۔ ہمارے سر کو لوگوں نے کہا کہ آپ فوجی کتے بلوائیں، وہ نشاندہی کریں گے اور چور پکڑا جائے گا۔ ہمارے سر نے کہا کہ انسان کی زبان کا اعتبار نہیں ہے تو میں کتے پر کیسے اعتبار کر لوں۔ وہ کتا فرض کریں جو میری دکان کے سامنے دکاندار ہے اس دکان پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کھوج کے دوران۔ اب وہ دکاندار تو میری بڑی عزت کرتا ہے، میں نے چوری کس سے لینی ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس طرح ہر مشورہ دینے والے کو بات کر کے خاموش کروا دیا۔ چوری کا سن کر ہر آنے والا مجھے اور میرے علاوہ جو ایک اور لڑکا دکان پر کام کرتا تھا ان کی طرف بڑی حیرت سے دیکھتے تھے، شاید یہ چور نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جو چور ہوتا ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں یا وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ کس طرح سارا ہوا ہے، نہ ہم اس معاملے میں انوالو تھے۔ اور ہمارے جو سر تھے وہ دن بدن یہ سوچ رہے تھے کہ چور پکڑنا ہے، میں نے جیسے تیسے کسی طرح بھی پکڑوں۔ جو میرے بھائی 2005 6 7 ان سالوں میں، ان عرصے میں موبائل ریپیرنگ کا کام کرتے رہے ہیں یا موبائلز کی دکان بنا کر کام کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس وقت کارڈ ملتے تھے، ریچارج کارڈ، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جائز کا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس طرح کارڈ ملتے تھے۔ ہمارے سر جس ڈیلر سے کارڈ لیتے تھے وہ ڈیلر ہمیں کارڈ کے اوپر جو یہ سیریل نمبر لکھا ہوا ہے ہمیں بھی لکھ کر دے کے جاتا تھا کہ فلاں سیریل کے کارڈ آپ کے پاس ہیں، اور یہی سیریل نمبر وہ اپنے پاس بھی رکھ لیتا تھا کہ فلاں سیریل کے جو کارڈ ہیں وہ فلاں دکاندار کو میں نے دیے ہیں۔ چوری ہونے کے تقریباً 1.25 ماہ بعد ہمارے سر نے وہ ریکارڈ نکالا کہ کارڈ
कहाँ कहाँ से हमने ख़रीदे हैं और उनका सीरियल नंबर कौन सा था। बहरहाल उन्होंने जैज़ कार्ड का सीरियल नंबर निकाला जो उनके पास मौजूद था और जैज़ की जो सिम होती है लोड वाली, उससे नुमाइंदे को कॉल की। आपको पता है जिनके पास इजी लोड वाली सिमें होती हैं उनको इस तरह की कॉल्स करने की इजाज़त होती है। कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो स्क्रैच हो जाए या कोई भी ऐसा मसला हो या गलती से किसी और नंबर पर लोड चला जाए तो फ़ौरन वो रिटर्न कर देते हैं। हमारे बॉस ने किया जैज़ के नुमाइंदे से बात की, उनको सीरियल नंबर बताया कि ये मेरे पास सीरियल नंबर है और इसके ऊपर जो नंबर दिया होता है जिसको स्क्रैच करके कार्ड रिचार्ज किया जाता है वो हमसे मिट चुका है, स्क्रैच हो चुका है। तो क्या आप इसका हमें डिजिट नंबर बता सकते हैं? तो नुमाइंदे ने कहा कि ये ऑलरेडी कार्ड जो सीरियल नंबर आप बता रहे हैं ये रिचार्ज हो चुका है। हमारे सर ने पूछा ये किस नंबर पे रिचार्ज हुआ है? तो उस नुमाइंदे ने बताया कि ये फ़लाँ नंबर पे रिचार्ज हो चुका है। हमारे सर ने वो नंबर लिख लिया। सेम इसी तरह उन्होंने टेलीनॉर पर कॉल की, उसने भी यही बताया कि ये कार्ड रिचार्ज हो चुका है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। हमारे सर ने पूछा किस नंबर पे ये रिचार्ज हुआ है? उन्होंने नंबर बताया, सर ने वो भी नंबर लिख लिया। फिर हमारे सर ने क्या उन 2 नंबर्स पर कॉल की मुख्तलिफ नंबरों से कि ये आपने एक कार्ड रिचार्ज किया है फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम, ये कार्ड आपने कहाँ से लिया था? उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दुकान है। क्योंकि किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, ये वीडियो है हर आदमी देखता है, बस बात बताने का मकसद है, किसी की दिल आज़ारी या किसी का राज फाश करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारे सर ने एक नंबर पे कॉल की, उससे पूछा कि फ़लाँ डेट को आपने एक कार्ड रिचार्ज किया है, ये आपने कहाँ से लिया था? उसने कहा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दुकानदार है। सेम उसी तरह उन्होंने दूसरे नंबर पे कॉल की, उसने भी उसी ही दुकानदार का एड्रेस दिया। कन्फर्म हो गया कि हमारे जो कार्ड गुम हुए थे या जो हमारी चोरी हुई है उसमें वो दुकानदार भी इन्वॉल्व है। हमारे सर ने क्या एक पुलिस वाला आदमी सिविल वर्दी में, उसको लिया और उस दुकानदार के पास चले गए। उससे एक जैज़ का कार्ड लिया, वो अपने मोबाइल में सेव कर लिया। एक टेलीनॉर का लिया, वो भी सेव कर लिया। अब जो बात समझने वाली है वो ये कि हमारे पास उस वक्त एक कार्ड था पाकटेल 600 रुपए वाला, उसका सीरियल नंबर हमें ज़बानी याद हो गया था। ठीक हो गया। हमारे बॉस ने, हमारे सर ने जो पुलिस वाला था उससे पूछा कि सर आपको तो कार्ड नहीं चाहिए था पाकटेल 600 वाला? ये सुनते ही जो दुकानदार था उसने कान खड़े किए। उसने कहा जी कौन सा आपको कार्ड चाहिए? हमारे सर ने कहा पाकटेल का 600 वाला कार्ड चाहिए, हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। उसने कहा लो जी ये कोई बात है, मिल जाएगा आपको। उसने दराज में से वो कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के जैसे काउंटर पे रखा, हमारे सर ने अपनी जेब से वो लिस्ट निकाली जिसके ऊपर सीरियल नंबर लिखे हुए थे। कुदरती जो कार्ड उन्होंने रिचार्ज किए थे वो और पाकटेल का कार्ड, तीनों के नंबर्स ऑलरेडी हमारे सर के पास मौजूद निकले। हमारे सर ने उस दुकानदार से कहा कि ये बताओ ये कार्ड तूने कहाँ से लिए हैं? अब वो दुकानदार था, कहने लगा कि आप मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये है वो सफाई देने की कोशिश करने लगा। हमारे सर ने कहा कि ये जो आदमी मेरे साथ है ये पुलिस वाला है, ये सारा मामला इसके सामने हो चुका है, अब आप इस बात से मुकर नहीं सकते, तो इज्जत आपकी इसी में है कि आप हमें बता दें। बहरहाल उसने बताया कि हमारे बाज़ार में जो वो फलां आदमी है ना, मैंने उससे लिए हैं। तो उसको भी उठाया गया फलां आदमी को, और उस दुकानदार को भी उठा के थाने में फेंका गया।
वहाँ पे उसकी खातर तवाज़ो की गई और उस चोर से पूछा गया कि तूने ये सारी वारदात कैसे की। उसने फिर सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि तकरीबन 5 बजे का टाइम था, मैं आपकी शॉप पर गया। आपकी शॉप पर 2 आदमी थे, एक मौलवी था और एक और आदमी था। उनसे मैंने 30 रुपए का लोड करवाया। लोड करवाने के बाद मैंने छत की तरफ देखा तो छत मुझे नज़र आई जिस तरह कच्ची है। तो मैंने सोचा अंदर कितना माल है, अगर मेहनत भी करूं तो मेरे हाथ क्या आएगा। बहरहाल मैंने 30 रुपए का लोड किया, सारा वाकया देखा, सारा वकूआ देखा और मैं चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया। किसी वक्त हम मिल के चोरियां किया करते थे। उसको मैंने कहा कि ये फलां दुकान है, इसकी छत इस तरह की है और अगला काम तुझे पता है। उसने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं कुछ। बहरहाल वो कहने लगा तकरीबन 1:45 का टाइम था। हम आपकी दुकान से जो 4 मकान पीछे हैं गली में, उधर से हम फलांगे आपकी दुकान की छत तक पहुंचे। एक आदमी थोड़ा सा मोटा था और एक थोड़ा सा कमज़ोर होगा, बारीक। उसको नीचे उतारा, सामान लिया और हमने आधा आधा किया। वो अपने घर को चला गया, मैं अपने घर को चला गया। उसने ये बात सारी बताई। अब इस मामले में 2 आदमी गिरफ्तार हो चुके थे, एक दुकानदार और एक चोर। यहां से बात समझने वाली है, हमारे सर ने तकरीबन 10 लोगों को मजीद गिरफ्तार करवाया। वो कैसे? चोर से ये पूछा कि तूने मोबाइल या जो भी चीज उठाई है कहां कहां बेची है। उसने कहा फलां फलां दुकानदार को फलां फलां चीज बेची है। हमारे सर ने कहा चलो जी उस दुकान पे। पुलिस वाला भाई भी साथ था। वो एक दुकान पर गए कि ये आदमी आपको फलां मोबाइल बेच कर गया है, आपने कितने का लिया है? दुकानदार ने कहा कि मैंने 1000 रुपए का लिया है। फर्ज करें एक मोबाइल का मार्केट रेट अगर 1000 रुपया है और उस दुकानदार ने 1000 रुपए में ख़रीदा है तो वो इस मामले से बरी है। अगर एक मोबाइल का रेट मार्केट रेट 1000 रुपए है तो जिस दुकानदार ने उसको 200 रुपए में ख़रीदा था वो जुर्मदार है, क्योंकि वो चोरी के ज़ुमरे में आ जाता है। इस तरह करते करते जिन्होंने मार्केट रेट पर उस चोर से चीज़ें खरीदी थी वो बर्री, और जिन्होंने सस्ते दामों चीज़ें उस चोर से खरीदी थी वो सब पकड़े गए। प्यारे दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि परेशानी में भी सब्र व तहम्मुल का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह लोग हमारे सर को कह रहे थे कि कुत्ते बुलवाओ या फलां आदमी को उठाकर अंदर फेंक दो, अगर वो उनकी बातों में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेते ठीक हो गया। चोर तो मिलना नहीं था क्योंकि वो तो चोर थे नहीं।